गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो टू एवरीवन। जैसे कि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि लाइकेन्स क्या है, राइट? तो लाइकेन्स आर नथिंग बट an algae and fungi symbiotic association or an symbiotic association or interaction between an algal and fungal partner where both are benefited by each other, right? All the details related to lichens we described in last class, like for example, if we talk about importance of lichen, then lichens like cladonia and asnia are used in the production of an important antibiotic called asnic acid, or lichen like Laccalia or Rossella are used in the commercial production of litmus paper, while other lichens like Parmelia are used as food additive as well as in the medicinal use of say treatment of hydrophobia like disease. Okay, and there are several other examples, okay, of lichens which are a very useful thing for us, okay, for different purposes. If we talk about type of lichens, then there are two bases used. First is mycobiont. On that basis there are basidiomycetes, basidiolichens, ascolichens and deuterolichens, while on the basis of say appearance there is crustose lichen, foliose lichen and fructose lichen, right? And several other things we describe for lichens as an organism. The next thing that we are going to discuss before we move on to kingdom Plantae are viruses, viroids and prions. Get the heading very correctly. This is something that we are going to study now, is something because of which we are in this scenario that I have to teach like this, you have to listen like this. Virus, है ना? तो अभी हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे या जानकारी लेंगे वो लेंगे जनरल जानकारी अबाउट वायरसेस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स, जिसमें से नो डाउट वायरसेस ये टर्म किसी के लिए अननोन नहीं हो सकती या नहीं है ना, बिकॉज दे आर नोन टू ऑल, एटलीस्ट अभी तो सबको पता है। लेकिन जो दूसरी दो टर्म्स है विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स, दे मे बी साउंड न्यू टू यू। तो देखो इन तीनों को ही हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन मेनली वायरसेस को, ठीक है, और विरियोइड्स और प्रियॉन्स को भी हम जानेंगे आने वाले कुछ मिनटों में। तो सबसे पहले एक बात हम रिकॉल कर ले कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ये चैप्टर हमने पढ़ा है और वहाँ पे हमने वायरल डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, जिसमें से दो डिसऑर्डर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, राइनो वायरस वाला कॉमन कोल्ड और HIV वाला एड्स, राइट? तो वहाँ पे हमने इनिशियल डिस्कशन किया ही है वायरसेस का, तो उसको आपको रिकॉल करना होगा कि हमने वायरसेस के बारे में वहाँ पे क्या पढ़ा। वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होती हुई हमको दिखेंगी अगर आपको वो याद है। सबसे पहले देखो टूवर्ड्स डिस्क्रिप्शन और यू से डेफिनेशन ऑफ वायरसेस कि दे आर असेल्यूलर, मतलब समझ में आया? असेल्यूलर मतलब सेल लाइक कोई भी चीज वायरसेस में नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड असेल्यूलर। इन्फेक्शियस बिकॉज दे कॉज डिसीजेस। Nucleoprotein particles, now why they are called nucleoprotein particles, I think you know it already, but still, because any virus, whether it's a plant virus, animal virus, bacterial virus, any virus, there are two compulsory components in its structure. One is nucleic acid, which can be either DNA or RNA, never both. What I said, the nucleic acid is one compulsory component of a viral structure which can be either DNA or RNA, but never both. You look at our cell or any animal or plant cell, it contains both DNA as well as RNA in a single cell. DNA as a genetic material
and RNA in cytoplasm like mRNA, rRNA, tRNA for various purposes. But in viruses, you will find either DNA or RNA, never both at a time. And second compulsory component of any viral particle is what? Is a kind of protein coat that is called as capsid. So because these two, that is nucleic acid and a protein coat, are the compulsory components of any viral particle, we call them nucleoprotein particles. Is it okay? Getting the thing? Now read this once again, that viruses are acellular, infectious nucleoprotein particles which are considered to be on the boundary of living and non-living. ना हम viruses को living मानते हैं, ना हम उन्हें non-living मानते हैं, but according to their characteristics they can be best said कि they are on the boundary of living and non-living, in a transition phase of two worlds, living and non-living. Is it okay? So थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि who was the person because of whom virus like thing, okay, came into focus or came to focus. So it was Adolf Meyer. Get the name? Adolf Meyer first reported some fact because of which we know viruses today. He reported that the mosaic disease of tobacco plant, तंबाकू का प्लांट, उसमें एक कॉमनली नोन डिसीज या जो कॉमन डिसीज पाया जाता है वो है उसके लीफ का डीपिगमेंटेशन, जिसकी वजह से उसके लीफ पे कुछ हिस्सा सफ़ेद हो जाता है और कुछ ग्रीन रहता है. तो दिस इज कॉल्ड मोजाइक अपीयरेंस. ओके, तो ये जो मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको लीफ है, ओके, उसके बारे में एडोल्फ मेयर स्टडीज कर रहा था. तो उसने क्या किया, जो एक डिसीज प्लांट लिया, मतलब जिसमें टोबैको मोजाइक डिसीज हुआ था, तब तक कौन ये डिसीज कॉज करता है ये पता नहीं था, लेकिन डिसीज तो था. तो उसने क्या किया, ये पता लगाने के लिए कि टोबैको मोजाइक डिसीज टोबैको प्लांट में क्यों होता है, मोजाइक डिसीज हो चुके प्लांट से लीफ को तोड़ा, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को ये समझ के निकाला कि भाई अगर इस लीफ में डिसीज है तो उसके एक्सट्रैक्ट में वो ऑर्गेनिज्म भी होगा जो इस डिसीज को कॉज करता है, जाहिर सी बात है. तो तब तक वो क्या सोच रहा था कि भाई कोई ना कोई बैक्टीरिया ही होगा जो टोबैको में टोबैको मोजाइक डिसीज कॉज करता है ना, क्योंकि तब तक तो बैक्टीरिया ही लोगों को पता था, वायरस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था. तो उसने क्या किया, उस एक्सट्रैक्ट को निकाल के हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया. कुछ दिनों बाद उसने देखा कि हेल्दी प्लांट जो है उसमें भी मोजाइक डिसीज हो गया. तो इस बात से एक बात तो प्रूव हो गई कि जो डिसीज वाले प्लांट से निकाला गया एक्सट्रैक्ट है वो दूसरे हेल्दी प्लांट में भी सेम डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब उस एक्सट्रैक्ट में वो कॉजेटिव एजेंट है. अब उसने क्या किया कि उस एक्सट्रैक्ट को, मतलब जो डिसीज प्लांट से लिया गया एक्सट्रैक्ट है, उसे स्प्रे करने से पहले उसने बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से पास किया. देखो, इट इज पास्ड थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर. बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मतलब ऐसा फिल्टर जिसकी पोर साइज इतनी छोटी होती है कि उसमें से कोई भी बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता. मतलब साफ सुथरा मतलब ये कि अगर हम किसी एक्सट्रैक्ट को या किसी सॉल्यूशन को बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से फिल्टर करें, पास करें, तो उस एक्सट्रैक्ट या सॉल्यूशन में कोई भी बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो वो फिल्टर में ट्रैप हो जाएगा और नीचे से आने वाले सॉल्यूशन या एक्सट्रैक्ट में कोई बैक्टीरिया नहीं बचेगा. अब लॉजिक क्या कहता है कि अगर टोबैको मोजाइक डिसीज किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है तो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से पास करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट है उसको स्प्रे अगर किया जाए तो डिसीज प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से पास होकर लिया गया एक्सट्रैक्ट है. लेकिन अडोल्फ मेयर ने जब ऐसा किया तो उसको कुछ और ही दिखा
कि even after the extract from diseased plant passed through bacteriological filter, the extract still produced the disease in healthy plant. एक्सट्रैक्ट को बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से पास करने के बाद भी उस एक्सट्रैक्ट को जब स्प्रे किया गया तो वो एक्सट्रैक्ट भी डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था। इसका मतलब अडोल्फ मेयर ने ये लगाया कि उस एक्सट्रैक्ट में, मतलब टोबैको मोजाइक डिसीज जिस प्लांट में हुआ था, उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट में जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसकी साइज या उसका नेचर बैक्टीरिया से अलग है, या वो बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा ऑर्गेनिज्म है, राइट। इट इज रिटन हियर कि दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ऑफ एडोल्फ मेयर स्टेट्स दैट there is an agent which is smaller in size than bacteria which causes mosaic disease in tobacco. Okay, कई सालों बाद after Adolf Meyer and another scientist who was Russian, Dr. D.J. Ivanovsky, W silent है, D.J. Ivanovsky was the Russian scientist who confirmed the presence of virus called tobacco mosaic virus in a latter named tobacco mosaic virus in the extract of the deceased plant. So Ivanovsky was the person who told us for the first time that an agent called virus, okay, which is much smaller than bacteria, is responsible for causing mosaic disease of leaf in tobacco plants. Okay, Adolf Meyer was unable to know the nature of the agent. It was Ivanovsky who told us the nature of an agent causing tobacco mosaic disease, later named tobacco mosaic virus. Okay, tobacco mosaic virus is particularly important for you as a question, so remember it. It's a plant virus, the first discovered virus discovered by D.J. Ivanovsky, and it is a virus that causes tobacco mosaic disease. One more important fact about tobacco mosaic virus is it is the first virus to be obtained in crystalline form. Okay, and the scientist who did this was Stanley. W.M. Stanley was the first person to obtain viral particles in crystalline state. Now, why viral particles can be obtained in crystalline state? Because they are living only under the host, and when they are outside the host they are like just another particle which is non-living, non-active, non-metabolic. That's the reason why bacteria, plant or any other living cell cannot be crystallized, but viral particles can be crystallized in the laboratory. And it all started with the first crystallization of tobacco mosaic virus by W.M. Stanley. Is it okay? So these are some names: Adolf Meyer, D.J. Ivanovsky and W.M. Stanley are important names as far as viruses are concerned. Okay, you should know their roles. Then इस टर्म को, जो वायरस नाम की टर्म है जो हम आज यूज करते हैं, उसे सबसे पहली बार दिया गया लुइस पास्चर के द्वारा. ओके, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी एंड लुइस पास्चर वाज द पर्सन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अस विद द टर्म वायरस. ओके, नाउ इफ यू सी फर्दर, there is some additional information related to viruses. See one by one. Viruses do not grow, do not metabolize and also don't consume food. देखो, तीन इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है. वायरसेस का साइज नहीं बढ़ता, दे डोंट ग्रो. वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते खुद का, दे डोंट मेटाबोलाइज. एंड खुद होकर एब्जॉर्प्टिव या इंजेस्टिव किसी भी तरीके से फूड कंज्यूम नहीं करते, राइट. तो वो करते क्या है? तो देखो, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, वो नॉन पैरासिटिक हो ही नहीं सकते. दे आर कंपल्सरीली पैरासिटिक. दे ऑलवेज act as a parasite on their host.
whoever is the host, it is always living, and they are compulsorily parasitic, and they multiply only within living host cell and cause variety of diseases in humans, plants and other animals. जिस भी एनिमल को, जिस भी प्लांट की सेल को या इवन ह्यूमन की सेल को वायरल पार्टिकल होस्ट के तौर पे यूज करता है, वो उस होस्ट मतलब अपने होस्ट की मशीनरी को यूज करके खुद मल्टीप्लाई होता है और होस्ट के रिसोर्सेस को खुद के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करता है। इस चक्कर में होस्ट में वो डिसीज भी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हमने ये डिस्क्रिप्शन लिखा है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट parasites who multiply only within living host cell and cause variety of diseases in humans, plants and other animals. Is it okay? As initially said, these are nucleoprotein particles which contain only nucleic acid and a protein coat called capsid. Okay, as compulsory structures, while additionally, अब ये बात और एक समझ लो कि पहले भी कहा है मैंने कि वायरसेस आर कंपल्सरीली न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स, मीन्स दे कंपल्सरीली कंटेन DNA or RNA as a nucleic acid covered by variously shaped protein coat called capsid. Now, additionally कुछ वायरसेस में दो और चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इन ऑल वायरसेस के लिए सिर्फ दो ही चीजें, न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड। बाकी कुछ वायरसेस में इन दो कंपल्सरी स्ट्रक्चर्स के अलावा दो और एडिशनल चीजें रह सकती है, जिसमें से पहली है एनवेलप, जो जनरली एनिमल वायरसेस में पाई जाती है, और दूसरी है एंजाइम, एसोसिएटेड एंजाइम पाया जाता है कुछ वायरसेस में। रिकॉल करो HIV का वायरस, उसमें हमने कहा था कि ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है टिपिकल वायरल पार्टिकल को दिखाने का, क्योंकि इसमें एनवेलप भी है, इसमें कैप्सिड भी है, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और इसमें एसोसिएटेड एंजाइम भी है। याद करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाज द एंजाइम एसोसिएटेड विथ जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट विद इन HIV वायरल पार्टिकल था ना। तो HIV वायरस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपको चारों पॉसिबल कंपोनेंट्स जो वायरल पार्टिकल में हो सकते हैं वो चारों देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कंपलसरी सिर्फ दो है, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, ये याद रखना। देन एनवेलप अगर प्रेजेंट है किसी वायरस में तो उसे एनवेलप्ड वायरस कहते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, और अगर नहीं है तो उसे नेकेड वायरस कहते हैं, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, राइट। देन न्यूक्लिक एसिड वाला पॉइंट भी मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई वायरल पार्टिकल में न्यूक्लिक एसिड एक कंपलसरी कंपोनेंट है, ओके, बट दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। DNA और RNA इज प्रेजेंट इन पार्टिकल ऑफ वायरस, नेवर बोथ। देन ये भी मैं तुमको समझा चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरसेस लिविंग होस्ट सेल के बाहर जिंदा नहीं होते, मल्टीप्लाई नहीं करते, किसी भी तरह की एक्टिविटी शो नहीं करते। तो एज आउटसाइड द लिविंग सेल्स वायरल पार्टिकल डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस or any activity. It is like a non-living thing out of the host cell. That's the reason why we call them obligate intracellular parasites or compulsorily parasitic in nature. Okay, then this is a very important aspect, again we discussed previously. They always utilize metabolic machinery of the host cell for synthesis of own components एंड रिप्रोडक्शन। देखो, पैरासिटिक है, ऑब्लिगेट है, और अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए उनके पास खुद की मशीनरी नहीं होती, मतलब ना उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना लाइसोसोम्स, ना साइटोप्लाज्म, ऐसी कोई भी चीज वायरल पार्टिकल्स के पास नहीं होती। फिर वो खुद की कॉपीज कैसे बनाए, खुद को मल्टीप्लाई कैसे करे,
जिसको हम कॉमन सेंस में रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो कैसे करें? तो दे डू दिस बाय यूजिंग देयर होस्ट्स मशीनरी. ओके, दैट्स द पॉइंट. दे ऑलवेज यूटिलाइज metabolic machinery of the host cell for synthesis of own components and reproduction. Is it okay? Now just have a look at this particular slide for a while. Okay, what you can see here. In first part, there are different possible shapes of the viral particles that can be there. Here you see with examples they are given, like this is polyhedral. Example, adenovirus, which is a kind of animal virus. This is spherical appearance, influenza virus that causes common flu, जिसको हम viral fever कहते हैं, है ना. Then दिस इज कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा सिलेंड्रिकल है, कुछ हिस्सा पॉलीहेड्रल है, तो इट इज कॉम्प्लेक्स सिमेट्री. एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफाज, मतलब वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियल सेल्स, और ये रहा सिलेंड्रिकल या इसको हेलिकल भी कहते हैं. एग्जाम्पल TMV, टोबैको मोजाइक वायरस. तो पॉलीहेड्रल हो, स्पेरिकल हो, कॉम्प्लेक्स हो या हेलिकल हो, ये सिमेट्रीज जो है ये कैप्सिड की है, मतलब प्रोटीन कोट की सिमेट्रीज है. ये न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर है, ठीक है ना. जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिख पा रहा है आपको, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इन टोबैको मोजाइक वायरस. दिस वन कर्सर, दिस थिंग, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड DNA इनसाइड द पॉलीहेड्रल कैप्सिड इन केस ऑफ बैक्टीरियोफाज. लाइकवाइज व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो इस कैप्सिड के अंदर है, और ये जो सिमेट्रीज आपको दिख रही है, वायरसेस के शेप्स आपको दिख रहे हैं, ये कैप्सिड के शेप्स है. ओके, सो शेप ऑफ अ वायरस इज बेसिकली अ शेप ऑफ कैप्सिड, राइट, और प्रोटीन कोट. देन ये एक और बाजू में एग्जाम्पल है जो आपका जाना पहचाना होगा, दैट इज व्हाट, HIV वायरस, जिसमें आप चारों पॉसिबल कंपोनेंट्स को देख सकते हो. ये रहा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA 2 कॉपीज में, राइट. ये जो पिंक डॉट है ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, लाइट पिंक वाला, मतलब एंजाइम हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया. जो ग्रीन और येलो कोट है दिस इज कैप्सिड. ओके, और ये जो पर्पल कलर का एरिया है, पर्पल वाला, ये वाला, दिस इज एनवेलप, राइट. सो एनवेलप पे ये ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स है जो होस्ट सेल के साथ इंटरैक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, राइट. तो HIV वायरस ये रहा, ये जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें आप वायरल पार्टिकल में प्रेजेंट चारों पॉसिबल कंपोनेंट्स को देख पाते हो, दैट इज एनवेलप, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड. जिसमें से एनवेलप और एंजाइम जरूरी नहीं कि हर वायरल पार्टिकल में हो, लेकिन न्यूक्लिक एसिड आइदर DNA और RNA एंड प्रोटीन कोट आइदर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, स्पेरिकल, पॉलीहेड्रल और हेलिकल सिमेट्री हर तरह के वायरस में होगा ही होगा. इज इट ओके? देन ये रहा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा वायरसेस के लिए. देखो सबसे पहले क्या लिखा है, वायरसेस डू नॉट रिप्रोड्यूस टिपिकली लाइक बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, गमिट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीकों से खुद को मल्टीप्लाई करता है. वायरसेस में कुछ और ही देखा जाता है. क्या होता है कि वायरसेस के जो भी कंपोनेंट्स है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लाइड की तरफ बाद में देख लेना, जस्ट हैव अ फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग. वायरसेस के जो भी कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स बनाने के लिए वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जीन्स पाए जाते हैं. ओके, उन जीन्स से वायरसेस के अलग अलग कंपोनेंट्स बन सकते हैं जिनको असेंबल करके नए वायरल पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं. इट इज जस्ट लाइक अगर आपने 10 CPU लाए, 10 मॉनिटर लाए, 10 माउस, 10 कीबोर्ड, ठीक है ना, तो ये सब आपने 10-10 की क्वांटिटी में लाया, 10 मॉनिटर लाया, 10 CPU लाया, 10 माउस लाया, 10 कीबोर्ड लाया, 10 प्रिंटर लाया, तो आप इससे कितनी कंप्यूटर सिस्टम्स बना सकते हो? टोटल 10.
एक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए एक मॉनिटर लगेगा, एक की CPU लगेगा, एक कीबोर्ड लगेगा, एक माउस लगेगा, एक प्रिंटर लगेगा। तो आपके पास हर एक अगर 10-10 है तो आप टोटल कंप्यूटर सिस्टम्स कितने बनाओगे? 10। उसी तरह से वायरल पार्टिकल डिवाइड होकर खुद की 2 कॉपीज नहीं बनाता। वायरल पार्टिकल्स अपने न्यूक्लिक एसिड के जरिए अलग अलग कंपोनेंट्स बनवाता है और उन कंपोनेंट्स को जोड़ के मतलब असेंबल करके नए वायरल पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। बट दिक्कत यह है कि न्यूक्लिक एसिड में कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन उन जीन्स को एक्सप्रेस करवाने के लिए मशीनरी जो लगती है, मतलब राइबोसोम्स लगते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें जो लगती है, वो मशीनरी वायरल पार्टिकल के पास खुद के पास नहीं है। तो इधर ही रोल आता है होस्ट सेल का। तो जब भी कोई वायरस, चाहे वो प्लांट वायरस हो या एनिमल वायरस, अपनी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो सबसे पहले अपना जो न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करता है। वही यहाँ पे रेड पोर्शन में लिखा है कि इट इंसर्ट्स इट्स न्यूक्लिक एसिड इनसाइड होस्ट, देन द इंसर्टेड न्यूक्लिक एसिड दैट कैन बी DNA और RNA has genes required for formation of viral components, right? So different viral components are then produced separately, like कैप्सिड अलग बनेगी, नया न्यूक्लिक एसिड की कॉपीज अलग बनेगी, और कुछ होगा तो वो सब अलग बनेगा, अलग अलग कंपोनेंट्स के फॉर्म में, बाय यूजिंग होस्ट सेल्स मशीनरी, बिकॉज वायरस डोंट हैव इट्स ओन, राइट? नाउ इन बने हुए कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाएगा विद इन द होस्ट सेल और क्रिएट होंगे नए हजारों लाखों वायरल पार्टिकल्स जो इस होस्ट सेल को तोड़ के बाहर निकलेंगे। दैट इज these viral particles are then released out of the cell by causing lysis of the host cell. This is called bursting. तो आप एक बार फिर से इस सीक्वेंस को देखो, insertion of nucleic acid, then formation of components, assembly of components and release of viral particles by lysis of host cell. That's how viral particles reproduce themselves. अब इधर एक एडिशनल बात है, इस पे ध्यान से गौर करो। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के थोड़ी देर बाद, मतलब तुरंत के तुरंत नए वायरल पार्टिकल्स होस्ट सेल में बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में उस होस्ट सेल का लाइसिस हो जाता है और नए वायरल पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। इसे हम कहते हैं, इस तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरसेस को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल, और ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं लाइटिक वायरसेस या लाइटिक फाजेस, जो अपनी होस्ट सेल का तुरंत के तुरंत लाइसिस करवाते हैं आफ्टर इन्फेक्शन। लेकिन देयर आर सर्टन वायरसेस, फॉर एग्जांपल HIV वायरस, जो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद तुरंत उस होस्ट सेल का लाइसिस नहीं करवाता, तो उस होस्ट सेल में कई जनरेशन्स तक डॉर्मेंट फॉर्म में रहता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, और कुछ समय बाद ट्रिगरिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि वो डॉर्मेंट फॉर्म ऑफ वायरस एक्टिवेट होता है और पहले की तरह मल्टीप्लाई या कॉपीज बनाता है खुद की असेंबलीज के थ्रू, और फिर उस सेल का लाइसिस होता है अल्टीमेटली। लेकिन फर्क क्या है? जो लाइटिक फाजेस या लाइटिक वायरसेस है वो अपनी होस्ट सेल का तुरंत लाइसिस करवाते हैं, जबकि लाइसोजेनिक फाजेस जो है वो अपनी होस्ट सेल का लाइसिस तुरंत नहीं करवाते, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम करवाते हैं, राइट? इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों को मेंशन किया है, लाइटिक फाजेस एंड लाइसोजेनिक फाजेस। देन वायरसेस के बारे में एक और बहुत ही डिजास्टरस चीज ये है कि उनका न्यूक्लिक एसिड बहुत ही जल्द म्यूटेट होता है, जिसकी वजह से वायरसेस अपनी प्रॉपर्टीज को बहुत जल्दी बदलते हैं, जिसकी वजह से, यही वो वजह है कि किसी भी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोड्यूस करना या ट्रीटमेंट प्रोड्यूस करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। दैट इज द रीजन यू नो कि व्हाई होल वर्ल्ड इज लाइक searching for the vaccine for a disease that is spread everywhere nowadays, corona, right?
So vaccine against some virus is a very difficult thing to obtain. The reason is this: viruses can undergo mutation. Okay, and second very difficult thing about them is कि viruses को हमें किसी लिविंग होस्ट में ही ग्रो करना पड़ता है, वो किसी आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं होते. जैसे बैक्टीरिया हो जाएगा, प्लांट की सेल्स हो जाएंगी आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो. Viruses will not grow on any laboratory medium. In order to grow viruses, you need to have some kind of living cells. Then only they will grow. So generally, animal cell or plant cell cultures are used for growing viruses in laboratories. Is it okay? Now, on the basis of host infected, किस तरह के होस्ट को इन्फेक्ट किया है पर्टिकुलर वायरस ने, उस बेसिस पे वायरसेस के टाइप्स है आप देख सकते हो. एनिमल वायरसेस और जूफाजिस, प्लांट वायरसेस और फाइटोफाजिस, एंड बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजिस. सिंपल सा मीनिंग है, होस्ट कौन है उसके बेसिस पे ये नाम है, कुछ एग्जांपल्स के साथ. राइट, यू कैन सी हियर फॉर अ व्हाइल कि कौन कौन से एग्जांपल्स हमने कंसिडर किए हैं अबाउट एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियल वायरसेस. This is the classification of viruses on the basis of host infected. और एक बात याद रखो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वायरसेस. मतलब टोबैको मोजाइक वायरस ह्यूमंस या किसी एनिमल को कभी इन्फेक्ट नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज म्यूटेटेड इन दैट डायरेक्शन. और एनिमल वायरस कभी प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करेंगे अगेन अनलेस एंड अनटिल दे आर म्यूटेटेड इन दैट डायरेक्शन. सो दे आर होस्ट स्पेसिफिक. देन वायरसेस का इम्पोर्टेंस हमारे लिए ये है कि वो प्लांट्स में, एनिमल्स में और इवन हम में दुनिया भर के डिसीजेस कॉज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखे हैं: टोबैको मोजाइक डिसीज, लिटिल लिव डिसीज ऑफ ब्रिंजल, ओके, एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा. ये प्लांट वाले हैं ऊपर के और ये एनिमल वाले. देन दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप का इन्फेक्शियस एजेंट आफ्टर वायरसेस इज विरियोइड्स. विरियोइड्स का डिस्क्रिप्शन देख लो, वही क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल्स आर कॉल्ड विरियोइड्स. वायरसेस क्या थे? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, मतलब न्यूक्लिक एसिड दैट कैन बी डीएनए और आरएनए प्लस कैप्सिड, प्रोटीनेशियस कैप्सिड. इधर क्या है? विरियोइड्स आर दोज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल्स विच आर इन्फेक्शियस और कॉज डिसीज. इज इट ओके? So what is very important difference in viruses and viroids? So viroids are just a single stranded RNA particles or naked RNA particles which are not associated with proteins but are infectious like viruses. The term and the discovery of viroids was by Diner in 1971. Okay, and there is no known disease caused by viroids in animals. So they primarily cause disease or infection in plants. And this is another important thing as question. Potato spindle tuber viroid, जिसमें potato का shape spindle या coiled हो जाता है because of the infection by this agent called PSTV, potato spindle tuber viroid. Virus नहीं, viroid. Potato spindle tuber viroid, which is a single stranded naked RNA particle causing the disease called potato spindle tuber disease. Is it okay? Potato spindle tuber disease is a viroid disease. It is not a viral disease. Remember this. And finally, a small thing about prions. जैसे infectious naked RNA particles viroids है, infectious protein particles मतलब prions. So prions are the name provided to any protein which cause infection. Okay, इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन they reportedly cause certain diseases like mad cow disease or Kuru. The disease name is Kuru, which is basically what you say is
infiltration of the brain tissue and causing pore formation in brain tissue. Encephalopathy, that causes mental imbalance, that's why called mad cow disease in domestic animals. Okay, so mad cow disease or Kuru, these are the diseases which are called prion diseases, and prions are infectious protein particles. Viroids are infectious single-stranded naked RNA particles. Viruses are nucleoprotein particles. Okay, so this is the discussion that we need for viruses, viroids and prions, and previously it was about lichens. So these were the two topics, lichens in previous class and viruses, viroids and prions in this class, which is needed for us before we move on to two remaining kingdoms, that is Plantae and Animalia, which will start in next lecture. As far as this lecture, we are done. Thank you.